जी अस्सलाम वालेकुम students. Today in this video we will discuss about perspectives in sociology. First of all, we'll define perspectives. Sociological perspective. A working set of assumptions is called perspective. The lens that an individual chooses to view the scope of society from. Sociologists look for general patterns in the behavior of particular people. These are the definitions of sociological perspective. सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव बेसिकली एक अजम्पशंस का सेट है। हम एक कुछ मफरूज़े एज्यूम करते हैं, बनाते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट करने के बाद जब वो वेरीफाई हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं, तो हम उसका एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि सोसाइटी फंक्शंस according to this perspective. This phenomena is happening in society. So we develop our own perspective. There is a lens, a type of lens which is fit here in every individual's mind who see through its lens the society, its norms, its value, its functions, its structure. So sociologists try to look general patterns in the behavior of particular people. हमने अगर किसी केस को स्टडी करना है, सोसाइटी में किसी सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करना है, डाइवोर्स रेट है, क्राइम रेट है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, रोल ऑफ सोशल मीडिया है, इनको अगर हमने स्टडी करना है सोसाइटी में, तो हम पर्टिकुलर पीपल, उन लोगों के पास जाएंगे जो इसको यूज कर रहे हैं या जो इससे इफेक्ट हुए हैं, या वो इस जो लोग इस दायरा कार में आते हैं, उनसे हम जो है वो इसकी वजूहत, इसके रीजन, इसके कॉजेज वो हम मालूम करेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। जनरल पैटर्न। सोशियोलॉजिस्ट लुक्स फॉर जनरल पैटर्न इन बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पीपल। अब पर्टिकुलर पीपल से इंफॉर्मेशन लेके पूरी सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं कि दीज आर द रीजन ऑफ डाइवोर्स रेट, दीज आर द रीजन ऑफ स्नैचिंग, दीज आर द रीजन ऑफ crime rate, increasing in crime rate. These are the negative impact of social media, Facebook, Instagram. So these are social problems which we study and develop a perspective in society. So this process is called sociological perspective. Next, there are three perspectives in sociology. First is structural functional perspective. We can understand by its name there is structure and there is a function. So structural functional perspective is the framework for building theories that sees society as a complex system whose parts work together to promote solidarity and stability. Structural functional approach basically provides us a base for developing theories. According to these theories, this perspective says that society is just like a building. A building has its own structure. So society has its own structure. Different parts of a building gives strength to the building. So different parts of society makes uh, society functional to promote solidarity and stability. इस्तेहकाम पैदा करती है मुआशरे में जो उसके सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी। हर्बर्ट स्पेंसर एक सोशियोलॉजिस्ट है जिसने सोसाइटी को ह्यूमन बॉडी से रिलेट किया। उसने कहा जिस तरह ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ये एक दूसरे के साथ मिल के ह्यूमन बॉडी को फंक्शनल बनाते हैं, इसी तरह सोसाइटी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। फैमिली है, रिलीजन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक है, इकोनॉमी के अलावा आप देख लें रिक्रिएशनल है, मीडिया है, हेल्थ एंड मेडिसिन है। ये ऑर्गन्स हैं जो सोसाइटी को फंक्शनल बनाते हैं। और अगर ये ऑर्गन इनमें से कोई एक डिसेबल हो जाए तो सोसाइटी का फंक्शन डिसेबल हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगी सोसाइटी। जैसे हम ह्यूमन बॉडी है, हार्ट काम करना बंद कर दे तो हम कहते हैं हार्ट फेल हो गया, बंदा का फंक्शनल नहीं रहा, तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी बेकार हो जाता है। तो सोसाइटी का अगर वो फंक्शन नहीं रहेगा तो वैल्यूज जो नॉर्म जो उस अदारे से जुड़ी है वो भी डिसफंक्शनल हो जाएगी। सेकंड definition, second explanation of perspective. In this perspective, a society is seen as an organized network of cooperating groups operating in the fairly orderly manners.
according to a set of rules and values shared by most members. Society exists with groups, within groups. There are a number of groups in society which became a community, a society. So these groups cooperate with each other, like फैमिली है, पॉलिटिकल है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, ये ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड। और अगर जो है वो कुछ इनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किसने किए? सोसाइटी ने सेट किए, डिसाइड किए हुए, क्योंकि मोस्ट जो लोग हैं उस पर एग्रीमेंट है उनका कि भाई ये हम बात मानते हैं। और देखो ना, तमाम लोग मैट्रिक के लिए कहा जाता है जी स्कूल, फॉर्मल एजुकेशन के पास जाएंगे, स्टेट ने डिसाइड किए हुए स्टेप्स कि भाई ये मैट्रिक है, ये इंटर है, डॉक्टर बनना है तो ये रखना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो ये करना। ये सोसाइटी ने नॉर्म्स सेट किए। तो अब ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ ये सोसाइटी ने डिवेल्प किया है। तो स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच यही कहती है कि एक स्ट्रक्चर है, एक उसका फंक्शन है। नेक्स्ट, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, social structure and social function. Social structure, any relatively stable pattern of social behavior. Social structure gives our lives shape in families, workplace, classroom and community. Everywhere in society there is a structure. फैमिली में चले जाए, वर्क प्लेस पे चले जाए, एजुकेशन में चले जाए, क्लासरूम में, मदरसे में, मस्जिद में, हर चीज का एक पैटर्न बना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, कुछ ढांचा बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? एनी रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर। सो सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्सपेक्टिव इज सोशल फंक्शन, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी सोशल पैटर्न फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल। ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि जी ये फंक्शंस है। तो रॉबर्ट के बर्कर एंड अमेरिकन sociologist modified to define two types of social functions: latent functions and manifest functions. Latent function, the unrecognized and unintended consequences of any social pattern, and manifest function, the recognized and intended consequences of any social pattern. Latent function कहते हैं जी छुपे हुए, और manifest कहते हैं जो वाजे हमें नजर आ रहा है। ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट के बर्टर ने दो टाइप्स डिफाइन की है सोशल फंक्शंस की, एक लेटेंट है, एक मैनिफेस्ट है। लेटेंट छुपा हुआ, मैनिफेस्ट वाज़ेह। अब इसकी एक्सप्लेनेशन वो एग्जांपल यहाँ पे देता है। वो कहता है कि यूएस सिस्टम जो है हायर एजुकेशन का, अमेरिका में सिस्टम है, उसके दो फंक्शन है, एक लेटेंट, एक मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट फंक्शन जो हमें नजर आता है कि भाई वो एजुकेशन देते हैं, डिग्री देते हैं, प्रोफेशनलिज्म सिखाते हैं, सोशलाइज करते हैं बच्चों को, ये उसके मैनिफेस्ट फंक्शन है जो सबको पता है। लेकिन ऑन द अदर साइड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिकन सिस्टम आल्सो प्लेज रोल एज अ मैरिज ब्रोकर अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट के बर्टन। वो कहता है कि वहां पे सेम क्लास के, सेम बैकग्राउंड से लोग आए होते हैं, तो समटाइम्स लोग वहां पे क्या करते हैं कि लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए आते हैं कि भाई मेरे बैकग्राउंड का, मेरी क्लास का, ये अदारे में मैं जाऊंगा तो मुझे पता होगा कि मेरी जैसी क्लास के ही लोग वहां पढ़ते हैं, तो मैं उससे, मुझे लाइफ पार्टनर आसानी से मिल सकता है। तो वो कहता है ये उसका फंक्शन जो है ये लेटेंट है, छुपा हुआ है, फंक्शन हो रहा है, सोसाइटी में फंक्शन हो रहा है, लेकिन ये क्या है? छुपा हुआ है। तो इसी तरह वो कहता है हायर एजुकेशन का एक और फंक्शन है जो मैनिफेस्ट, जो लेटेंट है, वो दूसरा क्या है कि हमने इतने सारे यूथ को मार्केट से दूर रखा हुआ है, इंगेज किया हुआ है एजुकेशनल एक्टिविटी में। अगर वो मार्केट में चले जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो पहले ज़्यादा है और बढ़ जाएगी। तो हमने उनको कंट्रोल किया हुआ है एक सिस्टम में, कि एक सिस्टम बनाया कि वो चलते जाएंगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद डिग्री कंप्लीट करेंगे तो पहले लोग कुछ आगे चले जाएंगे, उनकी जगह पे ये आ जाएंगे। तो एक हायरार्की चल रही है बेसिकली। लेकिन अगर ये हम नहीं करते तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सोसाइटी में। तो ये लेटेंट फंक्शन छुपा हुआ है कि यूथ को उन्होंने मार्केट से दूर रखा है, एम्प्लॉयमेंट से दूर रखा है, ताकि आप इंगेज रहें। तो ये हायर एजुकेशन
जो है अमेरिकन सिस्टम का, ये रॉबर्ट के बर्टन ने बताया कि ये उसके दो लेटेंट फंक्शन है। नेक्स्ट, सेकंड पर्सपेक्टिव इज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट एंड थर्ड पर्सपेक्टिव इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। सेकंड, symbolic interactionist perspective. Social interactionist perspective is a framework for building theories that sees society as product of everyday interactions of individuals. Symbolic interaction कहते हैं, इसके भी दो हिस्से हैं। Symbolic interactionist ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो ये समझते हैं कि सोसाइटी जो है वो किस तरह से बनी है इंटरेक्शन से, डेली इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। हर एक दिन हर एक आदमी उठता है और इंटरेक्शन सोसाइटी में शुरू करता है। देखिए, टीचर उस्ताद पढ़ाता है, वकील अदालत में जाता है, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, दुकानदार अपनी दुकान खोलता है, बिजनेस शुरू करता है, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाता है। ये सारी इंटरेक्शन है, यही सोसाइटी बनाती है इंटरेक्शन। और अगर ना हो इंटरेक्शन, कट ऑफ हो जाए, तो सोसाइटी डिसेबल। सिंपल, जैसे लॉकडाउन हुआ, सब लोग घरों में बंद हो गए, का नहीं निकलना, लेकिन सोसाइटी फंक्शन कर रही थी क्योंकि फैमिली सिस्टम मौजूद, फैमिली में इंटरेक्शन हो रही थी, ठीक है। और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो है वो इंटरेक्शन हो रही थी, मीडिया मौजूद था, फैमिली मौजूद थी, रिलीजन मौजूद था, और जनाब आपका जो है सोशल मीडिया आ गया, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कनेक्टेड थे, तो सोसाइटी चलती रही, ठीक है। अदरवाइज आप बिल्कुल अगर उसको बंद कर देते हैं तो वो फिर इंटरेक्शन नहीं होगी, तो सोसाइटी नहीं चलेगी। सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव इज माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन, ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है सोसाइटी। देखिए, ये एक सिंबल है जो आपको दिखाया है मैंने, ये हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। ये एक पेट्रोलियम कंपनी का सिंबल है जिसका नाम शेल है। हमारा इस पे एग्रीमेंट है, लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई इसका मतलब ये है। इस वजह से हमें फौरन पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है। पेट्रोलियम कंपनी की एक मसरूआत जो है वह यहाँ से मिलती है, पेट्रोल मिलता है। तो अब इस तरह वो कहते हैं सोसाइटी कम्युनिकेट करती है, चलती है, इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ थ्रू सिंबल्स। So, George Herbert Mead and C.H. Cooley, these are two interactionist sociologists who concentrate upon this interaction between individuals and groups. They note that people interact mainly through symbols, which include signs, gestures, both most importantly through written and spoken words. A word has no inherent meanings. It is simply a noise, but it becomes a word when people reach agreement that this noise carries a special meaning. देखो, हम लोगों ने एग्रीमेंट वो कहता किया हुआ है। लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक इंडिविजुअल ग्रुप के साथ, इंडिविजुअल के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है? थ्रू सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? जेस्टर्स है, स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, रिटन वर्ड्स हो सकते हैं, कोई साइन है, कोई पिक्चर है, जैसे मैंने आपको दिखाई। तो अब हम लोगों ने इस पे एग्रीमेंट किया हो कि इसका मतलब ये है। वो कह रहे हैं कि एक नॉइस है, सिंपली एक जो वर्ड है ये सिंपली एक नॉइस है, इसका लेकिन मीनिंग आप कैसे बनाएंगे कि जब हमारा एक प्रॉपर एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर कि भाई ये इसका मतलब ये। इसी तरह इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो पिक्चर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे के ऊपर, तो आपके पास कोई आदमी थोड़ी खड़ा है जो आपको बताएगा कि भाई इधर से टर्न लेना है, यहाँ पे सिंबल्स है। तो उन सिंबल्स को देखते हुए आप ट्रैवल करते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। So this was the complete perspective of symbolic interactionist perspective. Third perspective is conflict perspective. Conflict perspective is the framework for building theory that sees society as an arena of inequality that generates conflict and change. Conflict theory sees society as in a continuous state of conflict between groups and classes. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है बेसिकली ये समझता है कि सोसाइटी जो है इसमें डिफरेंट ग्रुप्स के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, क्लासेस आर डिफरेंट। अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? इनइक्वालिटी की वजह से। इनइक्वालिटी क्यों है जी? रेस की वजह से, कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से, एज की वजह से, एजुकेशन की वजह से। अब ये इनइक्वालिटी है तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट चेंज लेके आता है। दो ग्रुप्स के दरमियान हो सकता है, दो कम्युनिटीज के दरमियान हो सकता है, दो इंडिविजुअल के दरमियान हो सकता है।
Unlike the spectral functional emphasizes on solidarity and stability, this approach highlights inequality and change. अब स्ट्रक्चरल फंक्शन तो कहता है कि जनाब डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो स्टेबल करते हैं सोसाइटी को, और सोसाइटी को इस्तेहकाम देते हैं, मजबूती देते हैं, बट ये कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी जो है ये चीज लेके आती है सोसाइटी को, ये चलाती है, आगे रन करती है. Guided by this approach, which includes the general conflict and race conflict approaches, sociologists investigate how factors such as social class, race, ethnicity, gender, sexual orientation, and age are linked to a society's unequal distribution of money, power, education, and social prestige. कि ये जो फैक्टर्स हैं जो इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं वो कौन से हैं? सोशल क्लास है, रेस है, एथनिसिटी है, जेंडर है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है. अब ये जो फैक्टर्स हैं ये किस तरह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, पावर, प्रेस्टीज इनको कंट्रोल करते हैं. देखें, पाकिस्तानी सोसाइटी में आप माइनॉरिटीज को देख लें, उनकी क्लास को देख लें कि वो किस तरह से है. तो ये इनइक्वालिटी है ना, ड्यू टू रिलीजन, ड्यू टू रेस. सब लोगों को जो है वो कभी कभी कहा जाता है, वो एक आदमी का जी ये चौधरी है, तो अब ये ड्यू टू हिज रेस, कि ये रेस की वजह से उसकी पावर, मनी और प्रेस्टीज जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है. तो ये फर्क जो है वो जेंडर वाइज भी है. खवातीन को बहुत से जो है वो नहीं राइट्स दिए जाते हैं सोसाइटी में, जहाँ पैट्रियार्कल सोच होती है, पैट्रियार्की होती है, मर्द की हुक्मरानी होती है. तो मर्द का जो है वो हेड ऑफ द फैमिली समझा जाता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन समझा जाता है. वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है वो बेसिकली इसी इनइक्वालिटी को देखती है कि ये चीज लेके आती है, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सोसाइटी को मूव ऑन करता है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है. ये कभी भी ऐसा नहीं है, सोसाइटी ऐसी नहीं है कि उसमें उस वक्त में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो देखें, इंस्टीट्यूशन जो है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, और डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते हैं कि अगर रिलीजन को कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी बाज़ होता है. तो उस प्रोटेस्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में कोई चेंज आता है, कोई एग्रीमेंट उनका होता है. जैसे अगर ट्रेड यूनियंस है वो अपना प्रोटेस्ट करती है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ एग्रीमेंट करता है. फैमिली प्लानिंग, फैमिली लॉज बना रहा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक हेड के तौर पर काम करता है, जिसके अंदर वो सारे इंस्टीट्यूशन है जिनके ऊपर वो नजर रखता है, और ये अटैच है. लेकिन इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, और यही कॉन्फ्लिक्ट चेंज का बायस लेके आती है. और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो सोसाइटी एक तरह से ही चलेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि वो जो है एक स्टेज पे आकर वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. चेंज नहीं होगा तो सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करेगी, लाइफ ही नहीं चलेगी. तो ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की जो थ्योरी थी. तो ये तीन पर्सपेक्टिव है बेसिकली. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू वेरी मच.